geography paper. So today I hope I will cover some portion which are important for geography for coming exam. So if you will go through this, hope you will be benefited. Okay. So first of all, I start with short question. Short question या MCQ. From every chapter you will get one MCQ because total 10 chapter. 10 chapter means suppose climate one question, one short question. Then climate one short question you will get, as well as one long question you will get. So climate, then natural vegetation, one short question, one long question. Then soil, one short question, one long question. Then water resources, one short question, one long question. So 4 long question completed. Then one easy chapter you can choose, that is transport. One short question, one long question. 5 short question हो गया, 5 long question हो गया. Then next easy chapter waste management. 6 short question हो गया, 6 long question हो गया. Then mineral resources 1 and 2, 1 short question, 1 long question. 7 long question हो गया, 7 short question हो गया. Then मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1 2, 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, 8 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया. देन और एग्रीकल्चर 1 2 3, 1 लॉन्ग क्वेश्चन या 2, आई थिंक मैक्सिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन. सो ऑलमोस्ट होल बुक विल कवर फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन. फॉर योर क्लैरिटी आई कैन सजेस्ट यू, most of the students generally write which chapter. One is climate, other is soil, third one is natural vegetation, fourth one is water resources, excluding these 4 because from one chapter one question 10 marks come. So excluding those 4 chapter you can choose one easy chapter, that is transport. 5 हो गया. 5 के बाद for factor of safety you can take waste management. 7 हो गया. Other portion you may read or not. For short question you just go through for short question lightly, then you can easily manage. If you follow this procedure, definitely you will score more than 95. This is sure because technical study is one of the most important thing before appearing exam, when you write in exam. Okay, so first of all I can say you about India map. So in India map, as you know, some indirect question may ask. Suppose direct question will come. First होता है coastal plain. So सारे coastal plain जैसे northern circuits. देन होता है करमंडल कोस्ट, गोदावरी तक, चिलिका लेक से गोदावरी तक ये हो गया नॉर्दर्न सर्कस. देन गोदावरी से अप टू एंड तक, कन्याकुमारी एंड तक ये हो गया करमंडल कोस्ट. देन मैंने पिक पॉइंट से तो कन्याकुमारी से वहाँ से फिर वहाँ जाएंगे कृष्णा कावेरी दोनों रिवर का बीच तक, ये हो गया मालवार कोस्ट. वहाँ पे फिर नर्मदा तापना, फिर थोड़ा सा ऊपर मीन्स माने कृष्णा कावेरी के बाद हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे. फास्ट होता है कन्याकुमारी से तुम कृष्णा कावेरी का बीच तक ले जाना, ये हो गया तुम्हारा मालवार कोस्ट. यहाँ से तो तुंगभद्रा और कृष्णा इसका बीच तक ले जाना, ये हो गया. तो तुंगभद्रा ये देखो, यू कैन सी, ये फर्स्ट यू सी, यहाँ से तुम आएंगे चिलिका लेक से अप टू गोदावरी तक, चिलिका लेक से गोदावरी तक, ये हो गया चिलिका लेक से गोदावरी तक नॉर्दर्न सर्कल्स. तब गोदावरी से अप टू ये एंड तक, ये हो गया तुम्हारा करमंडल कोस्ट. ये एंड से ये कृष्णा कावेरी दोनों बीच का मिडिल तक, ये हो गया मालवार कोस्ट. यहाँ से फिर तुंगभद्रा और ये कृष्णा
ये दोनों का बीच तक ये छोटा सा पोर्शन ये हो गया कानारा कोस्ट। यहाँ से फिर नर्मदा ताप्ती का बीच तक ये हो गया कोंकण कोस्ट। ओके, देन गल्फ ऑफ I just show you. So this one. So first of all, I will continue from map work. I told you 10 mark MCQ will come from every chapter. Then map work. Map work first I start from माने ये क्या होता है कोस्टल प्लेन फ्रॉम चिलिका अप टू गोदावरी, दैट इज नॉर्दर्न सर्कल्स, फ्रॉम गोदावरी अप टू दिस एंड। सो दिस विल बिकम, दिस विल नॉर्दर्न सर्कल्स के बाद दिस विल करमंडल कोस्ट, फ्रॉम दिस एंड पॉइंट अप टू कृष्णा कावेरी, ये दोनों का बीच तक ये हो गया मालवार कोस्ट। कृष्णा कावेरी के बीच से ये तुंगभद्रा और कृष्णा का बीच तक ये छोटा सा पोर्शन ये हो गया कानारा कोस्ट। सब यहाँ से ये बीच से ये नर्मदा तापी ना, ये गोदावरी और नर्मदा तापी इसका बीच तक ये हो जाएगा तुम्हारा कोंकण कोस्ट। ओके, ये कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन एज गिवन, तुम माने बुक में जो दिया हुआ तुम लोग को कोस्टल प्लेन के लिए येलो कलर इस्तेमाल करना। सपोज तुम पेंसिल इस्तेमाल किए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सब एक्सपर्ट ये भी बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इम्प्रेसिव होता क्या है कलर। इफ यू यूज कलर यू कैन यूज प्रॉपर कलर। ओके, देन गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कंबत, ये दोनों हो गया। तब इसके बाद चिलिका लेक, चिलिका लेक। ओके, ये हो गया अंडमान सी, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी। ओके, तो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट वाटर बॉडी, अरेबियन सी। देन रिवर के बारे में मैं बताता हूँ, ये इसको याद रखना IJCRB, ये इंदुज, झेलम, चेनाब, राबी, ये ऊपर वाला बीच। ओके, देन ये होता है सतलज। ओके, तो अब पूरा पोर्शन तुम कलर दे सकते, या कलर देने पर कोई नदी का ऊपर में देना है, नीचे जैसे नहीं आएगा, ब्लू कलर होना चाहिए। इसका ऊपर में तुम हाफ पोर्शन भी दे सकते, लेकिन कोई भी फीचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले कम होना चाहिए। हो गया। इसके बाद गंगा, यमुना, गंगा पहले होता ना, पहले यमुना, इसका पीछे गंगा, गंगा यमुना होता है, गंगा का एक होता है ट्रिब्यूटरी यमुना, देन गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। ओके, चंबल, बेटुआ, सोन, देन ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे दामोदर, दामोदर के बाद ये आ गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा से एक जो ब्रांच निकला ये तुंगभद्रा, ये कावेरी, ये नर्मदा, ये तापी। ओके, ये हो गया। तब ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाल्क स्टेट, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है सब सिटी। फर्स्ट देखो एक चेन्नई, जहाँ पे इंडिया थोड़ा ऐसे प्रोजेक्ट हुआ, इसी टाइप का हुआ, ये जगह में चेन्नई। चेन्नई जब हम देंगे, ये पूरा कोस्टल प्लेन को मैंने इसे टच करके देना है, इसे चेन्नई, ये रेड कलर, बिकॉज चेन्नई होता है कोस्टल टाउन। ओके, देन चेन्नई के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हैदराबाद। यहाँ से करीब हैदराबाद क्या होता है, नर्मदा तापी का बीच में, ये देखो दोनों को टाली करो, यहाँ से चेन्नई से ये जगह में कम से कम 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर के बाद ये हो गया हैदराबाद। देन ये जो कटिंग पोर्शन होता है यहाँ हो गया मुंबई, यहाँ मुंबई हाई, थोड़ा सा इसका नज़दीक, ऑफशोर ऑयल फील्ड। ओके, देन ये चिलिका लेक, चिलिका लेक, ये वाला ब्लू कलर। सपोज द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, ब्लू कलर लाइक दिस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, ब्लू कलर लाइक दिस। सो हमेशा ये चीज याद रखना। मैं तुम लोग को कहा सपोज महानदी लिखेंगे, फीचर के तरफ होना चाहिए एरो मार्क ऐसे। सपोज दिस वन ए, द महानदी, इसको कैपिटल लिख दो सबसे बेहतर, महानदी
NADA। ओके, इसका ऊपर कलर जैसे देंगे, इसका ऊपर होना चाहिए, जैसे इसका नीचे नहीं आना चाहिए। फीचर से ज़्यादा हो कम हो सकता, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। ये हो गया महानदी। ओके, लाइक दिस। देन नेक्स्ट थिंग ये होता है ये देखेंगे दिल्ली, दिल्ली ये जगह में यमुना नदी के पास। ओके, तब ये होने पर हम देखेंगे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ऐसे रहेगा, ऐसे कोई नदी का ऊपर ऐसे टच नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न घाट अगर करेंगे ऐसे यूं जाएगा, कोई नदी का ऊपर ये टच नहीं होना चाहिए। लाइक दिस वेस्टर्न घाट ऐसे एक सिंगल कलर। ये कौन सा कलर होना चाहिए? कोई भी माउंटेन ब्राउन, माउंटेन ब्राउन होना चाहिए। तब ये नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल कहाँ पर होता है? जब ये जगह में इंडिया जो पैरेलल हुआ, ये देखो ये जो पैरेलल लाइन हुआ, ये जगह में एक प्रोजेक्ट होकर आएगा, ये जो पैरेलल लाइन के पास ये होता है नीलगिरी हिल। ओके, नीलगिरी हिल। इसके बाद तब ये होगा अरावली, ये सिंगल कलर अरावली। इसके बाद तो अरावली के बाद विंध्या यहाँ पर ये सतपुरा। ओके, अरावली, विंध्य, सतपुरा। तब ये हो गया ऊपर वाला अरावली। देन अरावली के बाद तुम लोग देखे विंध्या, इसके नीचे सतपुरा है, नर्मदा तापी का बीच में सतपुरा है। सिंगल कलर, कौन सा कलर लाइन? ब्राउन कलर लाइन। देन काराकोरम पास, काराकोरम पास यहाँ पर। ओके, ये हो गया काराकोरम रेंज, इसका ऊपर गॉर्डिन ऑस्टिन। ओके, ये जगह में ब्लू कलर देना, ये जो ऊपर ये होता है उलुल लेक। ओके, ये इंपॉर्टेंट इस पोर्शन के लिए। और कांचनजंगा कहाँ पर? ये भी तुम्हारा कांचनजंगा, यहाँ पे कोई भी माउंटेन है ब्राउन कलर होना चाहिए। मैंने कहा कांचनजंगा ये जो सिक्किम जो होता है, ये बॉर्डर में, सिक्किम का बॉर्डर में एक ट्रायंगल तरफ दे देना कांचनजंगा। ओके, देन 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको लिखेंगे ड्रॉ एंड लेबुल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखना, 23.5 डिग्री नॉर्थ भी लिखेंगे। इसके बाद द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये गंगा और यमुना जहाँ पे मिला हुआ जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट, ये जगह में पास करेगा एक स्ट्रेट लाइन, कटा लाइन, ये होगा। इसको कहेंगे द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, ये क्लियर। देन गारो खासी जॉइंट आएगा, मतलब ये जगह में 3 ब्राउन कलर लाइन। ओके, तब ये डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, यहाँ पे केरला कर दो या दिल्ली कर दो, यहाँ पे यमुना नदी के पास, या बिहार के पास सोनू नदी के पास यहाँ पे कर दो, बा यहाँ पे कलकत्ता, ये जो टीप का ऊपर कलकत्ता, यहाँ पे भी कर दो। कोई अगर सिटी नहीं कहा, एक प्लेस का, सपोज ये स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट इन प्लेस इन नॉर्थ इंडिया, ये सिक्किम कर दो। ये थर्ड डेजर्ट, थर्ड माने रेत का कलर तुम लोग का होता है क्या? येलो, तो अब इसको येलो कलर देंगे। ओके, तब ये येलो कलर में ये थर्ड डेजर्ट कहेंगे। या वेस्टर्न राजस्थान में बहुत कम लोग रहते हैं, ये भी स्पार्सली पॉपुलेटेड। ये लद्दाख वगैरह में बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड। ओके, हो गया। देन कांचनजंगा, कांचनजंगा कहाँ पर? मैंने कहा यहाँ पर कांचनजंगा, यहाँ पे केटू कहा बा गॉर्डिन ऑस्टिन। ओके, देन नेक्स्ट होता है छोटा नागपुर प्लेटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू के पास तुम्हारा क्या क्या करना? 2 फीचर ये रहता है। एक होता है छोटा नागपुर प्लेटू, तब इसके बाद रहेगा एक रहेगा सिंहभूम, एक झरिया। झरिया रहता जस्ट ये जो ब्रांच नदी हुआ यहाँ पे झरिया। ओके, सिंहभूम थोड़ा कलकत्ता का पास, ऐसे स्टेट लाइन ले लो, ये सिंहभूम।
सिंहभूम, झरिया, और ये जब ब्रह्मपुत्र रिवर आया इसका राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिख गई, ये सब रेड कलर दे देना। ओके, तो इसके बाद ब्लैक सॉइल होने पर तुम यहाँ दे सकते, ब्लैक कलर का, यहाँ ये मुंबई के पास यहाँ दे सकते। रेड सॉइल होने पर ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जगह में दे सकते। लैटराइट सॉइल होने पर ऑन द टिप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, अगर लैटराइट सॉइल मांगा तब वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कभी नहीं आएगा, तब ये जगह में लैटराइट सॉइल दे सकता है, ये जगह में दे सकता है। कभी कभी लैटराइट सॉइल भी हम यूं करेंगे, जब ये होता है इसका ऊपर में भी होता है, ये जगह में, ये जगह में भी लैटराइट सॉइल होता है। देखो लैटराइट सॉइल का पोर्शन होता है, तुम लोग का सॉइल कहाँ पर है, लैटराइट सॉइल, सॉइल, हाँ यही देखो, जहाँ पे बांग्लादेश स्टार्ट हुआ, ये जगह, ये जगह नहीं, बांग्लादेश स्टार्ट हुआ इसका ऊपर, ये लैटराइट सॉइल। ओके, लैटराइट सॉइल होना चाहिए कौन सा कलर, रेड और ब्राउन, लाइट ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है। रेड सॉइल तो रेड होगा। अच्छा, आलूवियल सॉइल ब्राउन, और तुम्हारा ये होता है ब्लैक सॉइल ब्लैक। ओके, ये आएगा क्वेश्चन, मीन्स माने ड्रॉ एंड लेबल ए प्लेस हैविंग लैटराइट सॉइल अबव द टॉपिक ऑफ कैंसर, तब इसको ले लेंगे। ओके, तब नेम द विंड व्हिच कॉजेस रेनफॉल इन विंटर इन वेस्टर्न पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, वो होता है लाइक दिस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, ये पोर्शन कंप्लीट। एज आई टोल्ड समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में कम इनडायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, लेबल द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज गोदावरी। द टीयर्स ऑफ आसाम, द टीयर्स ऑफ आसाम, तब ये क्या होता है, आसाम में हमेशा बाढ़ आता है, ये किस में है, ब्रह्मपुत्र। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ब्रह्मपुत्र। इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, लेबल द इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, दैट इज नर्मदा या तापी, किसी को भी तुम लेबल कर सकते। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदुज, सतलज। ओके, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, दैट इज यमुना, ऐसे आएगा, लेबल द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। देन टीयर्स ऑफ आसाम हुआ था ब्रह्मपुत्र, हमेशा वहाँ बाढ़ आता है। टीयर्स ऑफ बिहार, दैट इज कोसी रिवर। ओके, कोसी रिवर की वजह से बार बार वहाँ बाढ़ आता है। देन गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, द गंगा ऑफ मध्य प्रदेश, बेटुआ, चंबल, बेटुआ, सोन, जो 3 नदी होता है, बेटुआ। सिटी ऑफ जॉय, कलकत्ता। A city through which the Indian standard meridian passes, that is प्रयागराज और इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा यमुना दोनों कॉन्फ्लुएंस, जो दो जहाँ पे नदी मिलते हैं। ओके, सिटी लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड यमुना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज प्रयागराज और इलाहाबाद। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलुरु। ओके, सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम, रिवर झेलम के पास एक सिटी, कौन सा सिटी होता है, वो श्रीनगर होता है। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ 2 इंडियन स्टेट्स, कौन है, चंडीगढ़। ओके, पंजाब हरियाणा के। पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। पास कनेक्टिंग लद्दाख विथ चाइना, काराकोरम पास, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ, कभी कभी नहीं भी आएगा, कहेगा राइट द ड्रॉ एंड लेबल द पास कनेक्टिंग लद्दाख टू चाइना, सो काराकोरम पास। पास कनेक्टिंग सिक्किम विथ चाइना, दैट इज नाथुला पास। ओके, नाथुला पास के बारे में मैं थोड़ा जानकारी दूं, तुम लोग इसको बच्चों ज़्यादा गलती करते इसी में, इसी टाइप का होगा ये रेड कलर, क्योंकि इस साइड से आते हैं। तो हम नाथुला पास के लिए हम ऐसे करेंगे, ये देखो नाथुला पास, ये जो होता है ना ऐसे, ये इस कॉर्नर में ऐसे आएंगे नाथुला पास, वो रेड कलर होना चाहिए। ओके,
Then IT capital of India, Bengaluru. Financial capital of India, Mumbai. Winds that bring rainfall in Coromandel coast during winter, northeast monsoon wind या retreating monsoon wind. इसका डायरेक्शन कैसे होना है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तरफ. देन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कांचनजुंगा. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आएगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दैट इज कांचनजुंगा. देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, उलुल लेक. ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया अभी जो. द रिवर दैट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली, दैट इज नर्मदा. लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड इन इंडिया, मुंबई हाई. ओल्डेस्ट ऑनशोर ऑयल फील्ड इन इंडिया, दैट इज दिग्बोई. यंगफोल्ड माउंटेन इन इंडिया, यंगफोल्ड माउंटेन हिमालयज. ओल्डफोल्ड माउंटेन इन इंडिया, दैट इज आरावली. मीन जिसका क्या होता है, तो पीक थोड़ा शार्प होता है. ओल्ड फोल्ड माउंटेन में इसका पीक नहीं रहता. ओके, यंग फोल्ड माउंटेन में पीक, तीखा पीक रहता है. ओके. देन प्लेटू रिच इन मिनरल्स और रूरल ऑफ इंडिया, RUHR, जिसमें मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा है, वो होता है छोटा नागपुर प्लेटू. ब्लू माउंटेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीलगिरी हिल. The coast that receives winter rainfall, Coromandel coast. Okay, so this type indirect question may be asked. So ये हो गया MCQ. MCQ के बाद मैंने कहा मैप वर्क. मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन टोपोशीट. टोपोशीट में हम थोड़ा ध्यान दें. सपोज देखो, टोपोशीट में एक आएगा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस, एक आएगा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस. इसका ऊपर ध्यान देना. टोपोशीट में 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस मीन्स, सपोज मैं कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे कोई मार्क किया, कोई भी चीज़, सपोज स्पॉट हाइट, सपोज मैंने कोई भी स्पॉट हाइट मैंने सपोज लिया, कहाँ पे स्पॉट हाइट 183. तब इसका फास्ट होता है स्टिंग 29 देन 07. क्या होता है ये 183 के लिए मैं 4 फिगर में लूँगा 2907. ओके, फास्ट स्टिंग 2907, तब ये हो गया 4 फिगर. देन 6 फिगर के लिए सेम चीज, खाली थोड़ा सा चेंज होगा. 2907 मैंने लिखा लाइक दिस, 2907, थोड़ा गैप दे दूंगा, तब ये जगह ना 183. देन ये फर्स्ट गैप में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2. देन यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो फास्ट 4 फिगर के लिए कोई दिक्कत नहीं, खाली ऐसे कर देना स्टिंग, इसके पास लिख देना नॉर्थिंग. अगर 6 फिगर आया, स्टिंग और नॉर्थिंग लिखने के बावजूद स्टिंग के बाद थोड़ा गैप रखना, वहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फीचर डिवाइडेड बाई 2. देन सेकेंड गैप में वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द फिगर डिवाइडेड बाई 2. क्लियर? सपोज ऐसे कहा, सपोज द 6 फिगर गिव रेफरेंस ऑफ द लाइम नील. लाइम नील जो जहाँ पे लाइम वर्क होता है, ये हम देखेंगे कहाँ पर. देखो लाइम नील कहाँ पर है, ये 2706, 2705. देखो 27, ये लाइम नील यहाँ पे होता है, इसका फिगर यूँ होता है. ये मैप का नीचे भी ये फीचर दिया जाएगा. तब ये ऐसे रहता 2706 ऐसे. इसके बाद यहाँ पे 07 लिखा हुआ, यहाँ पे 28 लिखा हुआ. तब इसका 4 फिगर हम करेंगे कैसे,
2706। अगर 6 फिगर करेंगे 27 थोड़ा गैप दे दिए, 06 थोड़ा गैप दे दिए, गैप का नीचे मैंने कोई पेंसिल का लाइन नहीं होना चाहिए, खाली गैप दे देना। देन यहाँ से ये मिडिल तक डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद यहाँ से ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2, या इसके बाद यहाँ से ऊपर तक वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन 4 फिगर 6 फिगर हो गया। सपोज दूसरा क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। सपोज मैं तुम लोग को कहा था ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। तो अब यहाँ पे कोई भी फीचर होगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे कोई भी फीचर होगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे कोई भी फीचर होगा साउथ वेस्ट, यहाँ पे कोई भी फीचर होगा नॉर्थ वेस्ट। सपोज दो चीज है यहाँ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, फ्रॉम मतलब you just put in pencil or and scale one line here, distance of B from A, this is south west। सपोज मैंने ऐसे कर दिया, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम C, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम C, फ्रॉम मीन्स यहाँ पे लाइन दे दिया, ये नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। What type of climate is depicted in the, what type of rainfall is experienced in the map extract? हम कहेंगे सीजनल रेनफॉल, बिकॉज तुम्हारा जितना भी मैप सब राजस्थान गुजरात का सीजनल रेनफॉल। हाउ कुड यू नो, गिव एविडेंस। द एविडेंस इज फर्स्ट ब्रोकन ग्राउंड, ऐसे ऐसे दीज आर द ब्रोकन ग्राउंड, ऐसे ऐसे कटिंग रहेगा लाइक दिस, ये ब्रोकन ग्राउंड का फीचर। ये एक्चुअली जो सैंड में होता है नदी के किनारे, क्योंकि कभी कहीं माने बारिश कभी नहीं होता, एक आध बार अगर हुआ ऐसे सब माने कटिंग रहेगा, तो उसी को बोला जाता है ब्रोकन ग्राउंड। हमेशा बारिश होने पर ये तो धो के चला जाता है, तब इसको ब्रोकन ग्राउंड कहेंगे। ब्रोकन ग्राउंड मतलब सीजनल रेनफॉल। या ड्राई टैंक लाइक दिस, या ड्राई रिवर लाइक दिस। ओके, या कॉजवे क्या होता है, कोई देखो कोई रोड का ऊपर या कोई नदी का ऊपर वहाँ लिखा जाएगा कॉजवे और काट्रैक। तुम्हें लिखना है सीजनल रेनफॉल, द मैप द रेनफॉल एक्सपीरियंस्ड इन द मैप एक्सट्रैक्ट इज सीजनल रेनफॉल। एविडेंस पहला लिखना ब्रोकन ग्राउंड, इसके बाद ड्राई टैंक, ड्राई रिवर, कंप्लीट। ओके, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द पीपुल इन द मैप एक्सट्रैक्ट। अगर बारिश तो नहीं होता तो पानी कहाँ से लाते, पानी लाते ये होता है पेरेनियल लाइन्ड वेल, पेरेनियल लाइन्ड वेल, ब्लू कलर का डॉट होगा। हाउ कुड यू नो, बिकॉज थ्रू आउट द मैप एक्सट्रैक्ट मेनी ब्लू कलर डॉट आर स्प्रेड। ओके, हो गया ये चीज। देन नेक्स्ट चीज होता है, तो अब ये तुम लोग को थोड़ा सा जानकारी दो, ये हो गया मेटल लोड, रेड कलर का जो सिंगल लाइन ये होता है काट्रैक। ओके, तो अब आएगा मेंशन टू इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम डिपिक्टेड इन द मैप एक्सट्रैक्ट। वन इज मेटल लोड, अदर इज काट्रैक। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। तो अब तुम देखो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 स्क्वायर किलोमीटर। सपोज ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट बिलो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट, एरिया ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट बिलो नॉर्थिंग 606, नॉर्थिंग 06 का नीचे मैप एक्सट्रैक्ट का एरिया क्या होता है हम जानते। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 2 3 4 5, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 50 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, देन डिस्टेंस,
सो जनरली व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी, तो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी बाय क्रो फ्लाई मेथड, CROW क्रो फ्लाई मेथड और डायरेक्ट मेथड। अगर ऐसे आ गया कोई चिंता नहीं, हम सीधा स्केल डाल देंगे। सपोज आएगा कैलकुलेट द माने कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एलोंग द कार्ट ट्रैक और एलोंग द मेटल लोड। ये तो कार्ट ट्रैक हो या मेटल लोड हो, ये तो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं, स्ट्रेट। व्हाट इज डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये तो हम डायरेक्ट स्केल डाल देंगे। सपोज यहाँ पे ये डायरेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, सपोज दिस फिगर क्लोवर एंड टू दिस इज, suppose this is A and B, so I cannot to read properly, from A to B, so direct distance means you just put a scale like this, like इसका बीच सेंटर से इसका सेंटर तक सीधा एक स्केल डाल देना, जितना हुआ डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, जितना लेंथ होगा इसका डिवाइडेड बाय 2 वो किलोमीटर में आएगा। एरिया ऐसे भी स्क्वायर किलोमीटर, नॉट स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अगर कहेगा व्हाट इज द इनडायरेक्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस अलोंग द कार्ट ट्रैक, डिस्टेंस अलोंग द कार्ट ट्रैक फ्रॉम सपोज दिस वन ए टू बी, सो ये कार्ट ट्रैक, तब इसके लिए सब माने कोई भी ये रास्ता सीधा नहीं है, तब इसका ऊपर एक थ्रेड डालना, इसका बीच से इसका बीच तक, एलोंग द कार्ट ट्रैक, एलोंग द मेटल लोड, क्योंकि ये कभी सीधा नहीं रहता, इसका ऊपर एक थ्रेड डाल देंगे, थ्रेड का डिस्टेंस जितना हुआ इसको स्केल में माप देंगे, डिवाइडेड बाय 2, वो सेंटीमीटर में आएगा, डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर हो गया। देन व्हाट इज द ब्लू ब्लैक कलर वर्टिकल लाइन इन द मैप एक्सट्रैक्ट, इट इंडिकेट्स longitude. What is the black color horizontal line in the map extract? This indicates latitude. Okay, कभी कभी ये आएगा, अगर if a person start from माने एक्सट्रीम नॉर्थ टू एक्सट्रीम साउथ, कितना टाइम उससे लगेगा, हम देखेंगे भाई ये तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तब किलोमीटर दिया, टाइम अगर कितना टाइम लगेगा, स्पीड अगर दिया कितना टाइम लगेगा, दो तो वेरिएबल मिलना चाहिए, समझे। सपोज ए और बी का बीच में डिस्टेंस मापने के लिए कहा, हम डिस्टेंस माने हम मेजर किए, सपोज हुआ 6 किलोमीटर, सपोज कहेगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए एक आदमी को 5 मिनट लगता, तब इसको इसका स्पीड क्या है, तो मिनट को इधर सेकंड को चेंज करेंगे या किलोमीटर को चेंज कर देना अच्छा है, क्योंकि वो डिस्टेंस किलोमीटर से आया किलोमीटर में, तो अब इसका स्पीड हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसके बाद आएगा, एक होता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, एक होता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मीन्स रेड कलर स्क्वायर सब बहुत क्लोज होके रहता है, जनरली कोई भी मैप में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होता है। डिस्पर्स मतलब बहुत गैप होके रहता है, तब मोस्टली प्रत्येक मैप में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट ही रहता है। क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू नो, हाउ कुड यू नो, बिकॉज द हाउसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये हो गया। कभी कभी ये भी आता है, सपोज यहाँ पे एक रिवर होता है, तब ये रिवर के पास यहाँ 5 या लिखा हुआ, इट मीन्स व्हाट डज द symbol 5 r in g square 2025 indicate, it means relative depth of the river bed is 5 meter। सपोज यहाँ सैंड का फीचर ये ब्राउन कलर का होता है, ये सब सैंड ड्यून, ये देखो ब्राउन फीचर जितना है ये सब सैंडी फीचर, तब ये सैंडी फीचर के पास अगर ऐसे ऐसे ब्राउन कलर ये जगह में लिखा हुआ 3 r, इसका मतलब relative height of the sand dune is
3 मीटर। कभी कभी एक ड्राई टैंक होता है, इसके पास 3R लिखा हुआ, रिलेटिव डेप्थ ऑफ द ड्राई टैंक इज 3 मीटर। कभी कभी एक ड्राई टैंक ऐसे रहा, इसके बाद एक एम्बैंकमेंट भी रहा ऐसे, इसके बाद 3R लिखा हुआ, रिलेटिव हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ द ड्राई टैंक इज 3 मीटर। ये हो गया। इसके बाद एक चीज होता है, ये होता है, ये आने का बहुत चांस होता, जैसे ड्रेनेज पैटर्न। तो अब 3 टाइप का ड्रेनेज पैटर्न मेनली, एक होता है ये, एक मेन रिवर से ऑलमोस्ट पैरेलल हो के जो रिवर जाता, उससे कहा जाएगा ट्रेलिस्ड, TRELISD। ओके, सपोज ऐसे आया लोता टाइप लाइक दिस, तो अब ये हो गया डेंड्रिटिक। ओके, समझे। सपोज ये कंट्रोल लाइन, ये दीज आर द ब्राउन कलर कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन से कोई अगर स्ट्रीम सब आता होगा ऐसे, ये हो गया रेडियल। ये क्या है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तुम लोग का दिमाग में ये थोड़ा दिमाग चलाना, ये तो एक स्क्वायर में नहीं होगा, ये ऐसे 5 स्क्वायर रहेगा। सपोज ये कहा, ये 22, 23, 24, 25 कहा, 22, 9, इसका बीच में क्या आता है? इसमें जो होता है इसमें भी वही होता है। ओके, तो अब इसको कहेंगे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल डेंड्रिटिक ट्रेलिस्ट। देखो ये 10 मार्क का, बी केयरफुल। ये अगर थोड़ा सा तुम कॉन्शियस होंगे आराम से कर पाएंगे। कभी कभी रेत का अंदर व सैंड का अंदर कोई स्टीम अंदर जाने पर वो आगे बढ़ नहीं पाता, जैसे गंगा यमुना सरस्वती नदी अभी लीन हो गया, तब ऐसे ब्लैक कलर लाइन ऐसे सैंड का अंदर एक डॉट डॉट रहेगा, ये हो गया डिसअपियर्ड, इसका कोई स्थिति अभी नहीं। ओके, तो ये इसके बाद आएगा 40 द What do you mean by RF? RF means representative fraction. What does it mean? It means 1 unit in the map equal to 50,000 unit in the ground. Okay, 1:50,000. Okay, ये why RF is universal used? RF is universal used because it has no units. What is the RF given to you? RF of the map extract given to you 1:50,000. Then ये भी क्वेश्चन आ सकता, नेम टू नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब हम कोई ट्री या ब्रोकन ग्राउंड, रिवर, ये सब नेचुरल रिसोर्स। लेकिन मैन मेड होता है सेटलमेंट, कोई भी सेटलमेंट हो गया, तो अब ये हो गया मेटल लोड, काट ट्रैक, ये सब कॉजवे। ओके, ये सब हो गया तुम्हारा माने मैन मेड। कभी कभी एक ही कंट्रोल लाइन ऐसे होगा, यहाँ पे 300 लिखा हुआ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कंट्रोल हाइट ऑफ द प्लेस इज 300 मीटर। कोई एक स्पॉट के पास 502, इट मीन्स स्पॉट हाइट ऑफ द प्लेस इज 502 मीटर। ट्रेंगुलेटेड हाइट कभी कभी रहता है, इट मीन्स ट्रेंगुलेटेड हाइट ऑफ द प्लेस इज 502 मीटर। ओके, तब ये मैप वर्क लगभग, हाँ, रिवर का डायरेक्शन के लिए सपोज ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मेरा कहने का मतलब एक रिवर सपोज ऐसे होता है, यहाँ पे हम देखेंगे ये ज़्यादातर जगह में एरर मार्क दिया जाता है। ये एरर मीन्स देखो कैसे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तब ये कौन सा डायरेक्शन में जाता है? साउथ वेस्ट। ओके, ये अगर तुम्हें पता नहीं चला आराम से, तो अब ये करना, यहाँ देखो ये सब 10R लिखा हुआ, यहाँ 5R लिखा हुआ, मीन्स नदी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि माउंटेन एरिया में ज़्यादा कट होता है, डीप कट। प्लेन लेवल में कटिंग थोड़ा ये समतल हो जाता, समान हो जाता है, यहाँ ज़्यादा गहरा नहीं रहता। तो ये 10R से 5R, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। हो गया। या दूसरी चीज,
ये अगर एविडेंस नहीं मिला, कभी कभी स्पॉट हाइट, ये अगर 5 कोई भी स्पॉट हाइट, यहाँ पे एक स्पॉट होगा 522 लिखा हुआ, कभी कभी स्पॉट भी दिखाई नहीं देता, खाली नंबर लिखा जाता 522 320 196, तब ऐसे रहेगा बिकॉज स्पॉट हाइट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ओके, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, सो द डायरेक्शन ऑफ द रिवर इज साउथ वेस्ट, एक ओके, ये भी हो सकता, लेकिन ज़्यादातर केस में वो दे देता ये। कभी कभी नदी का अंदर एक ब्लू लाइन होता, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स पेरेनियल वाटर चैनल इन द ड्राई रिवर, ओके। तब ये होने के बाद ये हो गया, तो इसके बाद लगभग सब हो गया, तो अब इसमें और कुछ नहीं। इसके बाद मैं थोड़ा तुम लोग को बताता हूँ क्लाइमेट चैप्टर। क्लाइमेट चैप्टर में खाली बेसिक चीज मैं बताना चाहूँगा। क्लाइमेट चैप्टर में एक तो टेबल वाला न्यूमेरिकल आएगा, टेबल वाला न्यूमेरिकल आने पर तुम लोग मैं तुम लोग को एक इंडिया मैप दिखा देता हूँ, हाँ कोई भी इंडिया मैप, सपोज दिस इज ए इंडिया, दिस वन इंडिया मैप, यू सी टेबल वाला न्यूमेरिकल में देखना, अगर जून जुलाई में ज्यादा बारिश हुआ देन द रेनफॉल इज ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून विंड एंड और अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड, द स्टेशन में बी इज लोकेटेड इन द वेस्ट कोस्ट, द स्टेशन माइट बी मुंबई और कोची और मुंबई कोची गोवा, ओके। सपोज नवंबर दिसंबर में ज़्यादा बारिश हुआ हम देखें, तब हम कहेंगे द स्टेशन इज लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द स्टेशन माइट बी चेन्नई, विशाखापट्टनम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो टेढ़ा हो गया ये यूँ आएगा इसका डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड व रिटेटिंग मानसून विंड का डायरेक्शन ऐसे आएगा, ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कटिंग होके जाएगा, ओके। अगर जनवरी फरवरी में ज़्यादा बारिश हुआ, द रेनफॉल इज ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड, वहाँ पर रिटेटिंग मानसून विंड नहीं, और द स्टेशन माइट बी चेन्नई, ओके, ये क्लियर हो गई। देन इफ द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, इफ द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, जनरली 10 डिग्री से कम, तब उसी को हम कहेंगे द स्टेशन इज द प्लेस इज लोकेटेड नियर द सी एंड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज मॉडरेट, नाउ ओके। इफ द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज हाई, then the station or place is located in the interior of the country and the climate is not moderate, means the climate is extreme climate, okay, ये हो गया। देन ज़्यादातर जगह में ये होता, एक माउंटेन वो आएगा वेस्ट, द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एक्सपीरियंस्ड हैवी रेनफॉल, हाउएवर द सेंट्रल महाराष्ट्र और वेस्टर्न तमिलनाडु रिसीव वेरी लेस रेनफॉल because it is the western side of western ghat is located in the windward side of western ghat, however the central Maharashtra or western Tamil Nadu is located in the leeward side of western ghat, ऐसे रहेगा, पूरा ध्यान देना। सपोज द ये मानसून located माने is experienced heavy rainfall, however माने Shillong is near to monsoon ram experienced very less rainfall, क्यों? Because monsoon ram windward side of खासी, वो होता है leeward side of। ऐसे शिमला दिल्ली बहुत क्लोज होने पर शिमला का क्लाइमेट मॉडरेट, लेकिन दिल्ली का एक्सट्रीम, क्यों? शिमला हाई एल्टीट्यूड, ओके। ये इस पर थोड़ा ध्यान देना, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। तब क्लाइमेट का ऊपर तो एक क्वेश्चन तुम करेंगे। इसके बाद सॉइल चैप्टर में से, सॉइल में से प्रत्येक सॉइल का, तब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर
जो एक सॉइल का एक टेबल होता है, काइंडली इसको थोड़ा याद रख देना। अगर सॉइल का तुम टेबल याद रख दिए तब कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक सॉइल, सपोज प्रत्येक सॉइल, ओरिजिन, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन सुइटेबल फॉर क्रॉप्स, कौन सा एरिया में रहता, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसके बाद सॉइल कंजर्वेशन। ओके, तब सॉइल कंजर्वेशन मतलब के बाद थोड़ा सा हम देखेंगे ये भागर, खादर, भांगर, इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। और रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल का बीच में सिमिलरिटी क्या होता है ये आएगा। खादर भांगर का डिफरेंस भी आ सकता है। इन सीटू सॉइल, एक्स सीटू सॉइल, इसका बीच में थोड़ा डिफरेंस भी आ सकता है। जैसे गली इरोजन और सीट इरोजन। गली इरोजन थोड़ा डीप कट होता है। सीट मतलब सीट में जो खाली ऊपर वाला जो माने ये होता है, इरोजन होता है। ये कंप्लीट हो गया। सॉइल के बाद सॉइल इरोजन ना सॉइल कंजर्वेशन हो गया। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स टू अडॉप्टेड फॉर सॉइल कंजर्वेशन, ओके, और मेथड्स अडॉप्टेड टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, ये हो गया। तो अब इसके बाद हम सीधा जाएंगे सेकेंड, मैंने 2 क्वेश्चन हो गया। मैंने तुम लोग को पूरा 5 क्वेश्चन गाइड करूंगा। नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट डू मीन बाय नेचुरल वेजिटेशन, एवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन, लिटो, हाँ, ये दोनों का बीच में जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बहुत इंपॉर्टेंट। कम से कम 2 फीचर तो याद रखना। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर, क्यों? वहाँ बहुत घास होता है, डेंस होता है, वहाँ ज़्यादातर रेप्टाइल रहते, वहाँ नीचे दलदल एरिया होता है, ये सब रीजन। तब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को कोई लोग नहीं जा पाता। लेकिन मैंने भले ही वहाँ पे बहुत अच्छा टिम्बर मिलता, लेकिन ये एक्सप्लोट नहीं हो सकता। लेकिन तो वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया में रहता कौन? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसका माने कोई चीज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉरेस्ट वेजिटेशन इन इंडिया, तब तुम लिखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। दिस इज द वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे। तो अब इसके बाद इनका 1-2 वेजिटेशन या प्लांट का नाम भी लिखेंगे। ये कौन सा प्लांट, जैसे मैंने रोजोड, गुरजान, ये सब, ये मैंने अब हम लोग का एवरग्रीन फॉरेस्ट का मेन यहाँ वहाँ पे मैंने डेसिडुअस में साल, टीक, सैंडलवुड, इनका कहाँ पे यूज होता है और यूज कहाँ पे होता है, कौन सी फॉरेस्ट में ये मिलता है? ज़्यादातर यूज होता है मेकिंग फर्नीचर। सैंडलवुड इससे होता है तुम लोग का कोई सेंटेड चीज़ के लिए, कॉस्मेटिक सेंटेड चीज़, ये अलग बात है। लेकिन याद नहीं आएगा मतलब मैंने आँख बंद करके लगा दो, क्या होता है, निशान लगा दो, ये फॉर मेकिंग फर्नीचर। ओके, देन लिटोरल फॉरेस्ट, इसमें आएगा निमाटोफोर। इसका रूट थोड़ा ऊपर, पानी का ऊपर रहता, टू ऑब्जर्व ऑक्सीजन, टू गेट फ्री ऑक्सीजन। और ये आएगा कभी कभी बाढ़ आने पर ये पूरा इसका ये जो रूट सब मैंने पानी का नीचे आ जाता, पानी खत्म हो जाने पर ये सब रूट ऊपर दिखाई देता। ये कौन सा फॉरेस्ट? ये लिटोरल फॉरेस्ट। ये स्वाम्पी एरिया में, जैसे कोस्टल बेल्ट में ज़्यादा होता है। इसका ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ समान होता है। ओके, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ट्री होता है सुंदरी ट्री, वो फर्नीचर मेकिंग, बूट मेकिंग। और ये दूसरा जो चौक मिलता है ये खाली फ्यूल के लिए यूज होता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। देन ये होता है स्कॉर्ब एंड थॉर्न फॉरेस्ट। ये इसमें जैसे प्लांट वगैरह सब रहता है, खैर, ओके, ये प्लांट थोड़ा ये टिम्बर के लिए यूज होता है, फर्नीचर के लिए यूज होता है। लेकिन ये ज़्यादातर इसमें रेनफॉल बहुत कम होता है, 50 सेंटीमीटर से कम रहता, तब ये डेजर्ट एरिया में ज़्यादा मिलता। तो माउंटेनस फॉरेस्ट, ये क्या होता है? दे आर फाउंड इन मिड स्टांड, माने बहुत ये हिमालय रीजन में ज़्यादा मिलता। ये लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ पे ये हाई एल्टीट्यूड में फॉरेस्ट मिलता, जैसे 1500 मीटर 3000 मीटर का ऊपर ये फॉरेस्ट मिलता। ये हिमालय, जम्मू कश्मीर, आसाम, ये सब जगह में मिलता। ये दिस फॉरेस्ट आर द
are consist of mixed deciduous and coniferous forest, because leaves are modified into cones like cones to escape from ice. इसका ऊपर आइस गिरने पर ये माने इजीली इसको पास आउट कर देंगे, इसीलिए इनका लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पाइन लाइक स्ट्रक्चर। सो ये सब हाई माउंटेन में जो ज़्यादातर हाई अल्टीट्यूड में होता है, तो अब इसीलिए ये कॉनिफरस ट्री इसको बोलते हैं। ये दीज आर द फॉरेस्ट मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ बोथ डेसिडुअस एंड पाइन coniferous forest. They occur in transition zone of mixed forest and coniferous forest. Mixed forest coniferous forest का बीच में ये फॉरेस्ट मिलता है। ये हो गया। तब ये होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल। व्हाट इज द नीड ऑफ फॉरेस्ट, एसेंशियल फैक्टर व्हाई वी नीड ऑन फॉरेस्ट, what type of benefit we get from forest, ये बहुत important। afforestation, deforestation, reafforestation, social forestry, agroforestry, इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ओके, ये 3 हो गया। इसके बाद हम जाएंगे सीधा वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में हम कहेंगे वाटर रिसोर्स में सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। तब इसका भी ऊपर थोड़ा इसी में थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन एक से ज़्यादा भी आ सकता है मेरे ख्याल में। देन व्हाट इज इरिगेशन, ये होता है वाटर रिसोर्स में सबसे इनुडेशन कैनाल, पेरेनियल कैनाल, इसका बीच में तफात। और ये सबका एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस। जैसे टैंक इरिगेशन, ये ताप, इसके बाद ट्यूबवेल, वेल इरिगेशन, ये सबका माने कैनाल इरिगेशन, सबका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। डोंट गो माने बियॉन्ड 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स इफ यू रिमेंबर यू कैन इजीली एस्केप। ओके, देन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ये सब स्प्रिंकलर इरिगेशन मतलब ये सब होता है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस, पानी वेस्ट नहीं होता, प्लांट के पास सीधा पानी जाके पहुंचता है, ये इकोनॉमिकल रहता। लेकिन ज़्यादातर इसका प्रॉब्लम होता है कि हाँ इकोनॉमिकल नहीं रहता, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, कॉस्टली ज़्यादा होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड से अलग होता है, इसमें पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। ओके, देन वाटर कंजर्वेशन, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये मेथड जैसे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तापर ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हम कैसे करते हैं, तब अलग अलग एरिया में कैसे ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होता है, इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये 4th चैप्टर हो गया। देन एक ही चैप्टर में बताऊंगा, दैट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में बाबा एक होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये जामुट से कन्याकुमारी। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये पोरबंदर से वो सिलचर असम का। ओके, इनका डेस्टिनेशन, एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इसका ऊपर ध्यान देना। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये 4 मेगा सिटी को कनेक्ट करता है। ये सब चीज़ को कंट्रोल करता नाई, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाई का प्रोजेक्ट होता है एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ओके, तो अब इसके बाद हम देखेंगे रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एयर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ओके, तो अब ये खाली इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर होता है, जे इसका नाम लिखो। जैसे कांडला पोर्ट का इम्पोर्टेंट क्या होता है, रिवर पोर्ट वहाँ पे कौन है कलकत्ता का। तब यहाँ पे कौन सा पोर्ट ज़्यादा साइक्लोन इफेक्टेड होता है, विशाखापट्टनम। लॉन्ड माने ये लैंड लॉक्ड पोर्ट होता है ये कौन, विशाखापट्टनम। और मुंबई पोर्ट से कंजेशन कमाने के लिए कौन सा पोर्ट हुआ। ओके, तब माने इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना। तब इंटरनेशनल पोर्ट हम खाली याद रख देंगे, जैसे कलकत्ता,
चेन्नई, मन पारादीप, धामरा, ये कोच्चि, समझे, मुंबई, ये सब ये याद रख देना, तब ये चैप्टर कंप्लीट। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट तुम करेंगे कोई दिक्कत नहीं। और 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इसका ऊपर ध्यान दे देना। वेस्ट को, वेस्ट यानी डिस्कार्डेड थिंग्स व्हिच हैव नो फर्दर यूज इज कॉल्ड वेस्ट। इसके बाद वेस्ट को हम सब माने छांट के अलग अलग करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, खुला जगह में फेंकेंगे नहीं, और ये इसमें जो डिजीज होगा, ये सब कॉमन चीज तो हम जानते हैं। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम रखें पास, तो 5 क्वेश्चन के बाद ये भी तुम लोग के पास रहेगा, देन ओनली इजीली यू कैन एस्केप। ओके, विद दिस आई रिमेन hoping you all the best for the exam. Again I wish you good luck. Thank you very much.